Cl2, Br2, I2, and sodium, magnesium, aluminum, सिलिकॉन। तो ये सब जीरो चार्जेस हैं, सब जीरो, यानी कि इंडिविजुअल एलिमेंट अगर कोई भी लिखा हुआ होगा, इंडिविजुअल एलिमेंट कोई भी लिखा हुआ होगा तो मैं कहूंगा उस पर कोई चार्ज नहीं है, जीरो चार्ज है। और डायटोमिक गैसेस जो होंगी वो भी सारी जीरो होंगी, H2, N2, O2, F2, Cl2, Br2, I2, ये सब जीरो चार्ज होगा। देन which change involves reduction? Which change involves reduction? So सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि calcium carbonate to calcium oxide. So this is calcium carbonate and this is calcium oxide. Just find the charge of calcium in calcium carbonate. तो आप कहेंगे +2। Why? Because carbonate is -2। कंपाउंड आयन के चार्जेस आपको याद होने चाहिए, जैसे कि सल्फेट का चार्ज क्या है, दैट इज -2। नाइट्रेट का चार्ज क्या है, दैट इज -1। हाइड्रोक्साइड का चार्ज क्या है, दैट इज -1। सो Sir, कार्बोनेट could you इज like -2। make a table for me for this, like ये charges है इस वाले? Okay. हाँ, यस यस। सल्फेट इज -2, नाइट्रेट इज -1, हाइड्रोक्साइड इज -1, phosphate is -3, carbonate is -2, so carbonate is -2, so calcium is +2, और calcium is in group 2। तो ग्रुप टू में ज्यादातर जो चार्ज होता है, ज्यादातर क्या ग्रुप टू पे है ही +2 चार्ज। जितने भी मेटल्स हैं उनमें बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम है, बेरियम है, ऑल आर +2। So यहाँ पर what is the charge on calcium in calcium oxide? What is the charge on calcium on in calcium oxide? तो calcium is There +2 is no charge. क्योंकि oxygen is -2. Yes. So the charge is same, is not changing. So this is not Yes. a reduction. Reduction is gain of electron. So option A is incorrect. Option B, copper to brass. Copper to brass. You know, brass is what? This is an Alloy? alloy. And what is alloy? Alloy is a mixture of different metals. Alloy is a Yes, sir. mixture of different metals like aluminum or any other metal. So I will say that this is an alloy। तो alloy में just mixture of metal है, कोई केमिकल रिएक्शन थोड़ी हुआ है, इलेक्ट्रॉन का कोई गेन नहीं है, कोई लॉस नहीं है। so this is not a redox reaction। जब redox reaction ही नहीं है तो फिर वो रिडक्शन भी नहीं होगा ऑब्वियसली। तो बी इज ऑल्सो इनकरेक्ट। इथीन टू पॉलीइथीन, इथीन टू पॉलीइथीन, थोड़ा सा ऑर्गेनिक का तड़का है इसमें। सो इथीन इज दिस डबल बॉन्डेड हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन and hydrogen. This is the chemical formula for ethene, chemical structure for ethene। अच्छा जी, अब polyethene, what is polyethene? Polyethene is just like this, like this। Polyethene is just like this। Double bond to single bond, double bond to single bond, double bond to single bond। सो Yes, sir. डबल बॉन्ड टू सिंगल बॉन्ड मींस, अभी इसको थोड़ा डिस्कस करते हैं, पहले हम डी को चेक कर लें। सैंड टू सिलिकॉन, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला फॉर सैंड? व्हाट इज द I'm not. केमिकल फॉर्मूला फॉर सैंड? SiO2, Okay. SiO2, SiO2 to Si, SiO2 to Si। अब मुझे बताइएगा कि व्हाट इज द चार्ज ऑन सिलिकॉन? व्हाट इज द चार्ज ऑन सिलिकॉन in SiO2? 3. Uh, this is +4. +4. How? This is Si, 2 oxygen. Oxygen is -2 is equal to 0. So Si
minus 4 is equal to 0. SI is plus 4. So the charge on silicon is plus 4 and the charge on silicon in the product side is 0. Plus 4 to 0. Plus 4 to 0. So is this reduction or not? Plus 4 to 0. What is the definition of reduction? It means to What is reduce the it, like. definition of reduction? Reduction is gain of electron. Reduction is gain of electron. So, another definition of reduction is when the charge is decreased. When the charge is decreased. Reduction means decrease in charge. Oxidation means increase in charge. तो देखो प्लस फोर से जीरो हो गया चार्ज चार्ज प्लस फोर से जीरो हो गया मतलब रिड्यूस हो गया चार्ज सो दिस इज रिडक्शन सो ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन डी इज करेक्ट Okay, sir. तो एक क्वेश्चन के लिए आपको मतलब अच्छी खासी वर्किंग करनी है इसमें नाउ सी दिस अंडर सर्टेन कंडीशंस आयरन रिएक्ट्स विद क्लोरीन टू फॉर्म आयरन 3 क्लोराइड व्हिच स्टेटमेंट अबाउट दिस रिएक्शन इज करेक्ट which statement about this reaction is correct. So statement number A, chlorine is the oxidizing agent. तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता था हमने आपको बताया था कि The ऑक्सीडाइजिंग one that एजेंट loses electrons, and and reduces itself oxidizes other and reduces itself and reduces means gain of electron anything that gains electron is oxidizing agent. So, what is the charge on chlorine in the reactant side? I told you कि all diatomic has zero charges. तो जीरो चार्ज है क्लोरीन पर और यहाँ पर कितना चार्ज है FeCl3 में Cl पर FeCl3 में Cl पर कितना चार्ज है -1 है -1 -1 0 to -1 0 to -1 0 to -1 means के reduction or oxidation 0 to -1 oxidation. चार्ज डिक्रीज हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है पहले तो आप ये देखो Decrease. चार्ज डिक्रीज हो Decrease. रहा है डिक्रीज इन चार्ज इज रिडक्शन Okay. decrease in charge is reduction means chlorine is reduced तो reduces itself है ना so chlorine is an oxidizing agent so this is correct अच्छा बी सी डी को भी चेक कर लेते हैं कि आपको सारे ऑप्शंस पता हो ना कि क्या है इन सब का मतलब तो बी ऑप्शन में कह रहा है कि आयरन गेन्स इलेक्ट्रॉन व्हाट इज द चार्ज ऑन आयरन सो यू विल से 0 और व्हाट इज द चार्ज ऑन आयरन ऑन प्रोडक्ट साइड इन FeCl3 +3 0 to +3 0 to +3 का मतलब ये है कि इट इज लूजिंग इलेक्ट्रॉन इट्स नॉट गेनिंग इलेक्ट्रॉन ये गलत है ये लूज कर रहा है इलेक्ट्रॉन को कैसे इलेक्ट्रॉन जब लूज होता है तो चार्ज इंक्रीज हो जाता है +3 मतलब 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया और इन ऑप्शन सी आयरन इज रिड्यूस्ड नो आयरन इज ऑक्सीडाइज्ड when iron loses electron so this is not reduced this is oxidized so option C भी incorrect है क्वेश्चन यानी ऑप्शन डी This is not a redox reaction. No, this is a redox reaction. क्यों? कि चार्ज में चेंज आ रहा है ना ये 0 से +3 हो गया और वो 0 to -1 हो गया. So that's why option A is correct. So 25 का option A is correct. Now, uh, see this. Try this. Question 12. The formula of ammonium metavanadate is NH4VO3. It consists of NH4 ions and VO3 ions. What are the charges on these ions? What are the charges on these ions? तो इसकी वर्किंग अगर मैं आपको बताऊं कि दे आर सेइंग NH4 is an ion, so this is plus. VO3 is an ion, this is minus. क्या क्यों क्यों क्यों? Let's suppose अगर अगर NH4 पर +2 का चार्ज होता तो इसका फॉर्मूला पता है क्या बनता कुछ ऐसा whenever we write any formula तो वो जो चार्जेस होते हैं वो ऑल्टरनेटिव पोजीशन पर आ जाते हैं इसका चार्ज इसके नीचे और इसका चार्ज इसके नीचे तो अगर अमोनियम का चार्ज NH4 का चार्ज +2 होता
तो वो तो VO3 के नीचे आता। लेकिन इन्होंने जो फॉर्मूला दिया है उसमें तो यहाँ और यहाँ पर कोई भी नंबर नहीं है। जब कोई भी नहीं होता तो क्या होता है, वन वन होता है। तो इसका मतलब इसका चार्ज भी वन, इसका चार्ज भी वन, दोनों का चार्ज वन वन है। सो प्लस एंड दिस इज माइनस, सो दैट्स व्हाई ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अच्छा, अब आ जाओ जरा क्वेश्चन 23 पर, जरा देखिएगा इसे। इन विच रिएक्शन इज द अंडरलाइन सब्सटेंस रिड्यूस्ड? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम का चार्ज क्या है? तो मैं आपको कहूंगा +2 है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि कार्बोनेट इज -2। और कैल्शियम Yes. क्लोराइड पर, कैल्शियम पर कितना चार्ज है? दिस +2। चार्ज इज सेम। व्हेन द चार्ज इज सेम, तो नो रिडक्शन नो ऑक्सीडेशन। अब सेकंड को चेक करते हैं जरा। दिस इज +2 एंड दिस इज 0। सो +2 to 0, +2 to 0, charge is decreased, this is reduction. Charge is decreased, +2 to 0 is reduction in charge. So this is your correct option। सी को भी देख लेते हैं, सी को भी देख लेते हैं, सी में क्या मसला है। सो Fe2O3 और CO में कार्बन का चार्ज कितना है? तो +2 है। कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन का जो चार्ज है, दिस इज +2। वाई? क्योंकि ऑक्सीजन इज -2 है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूं कार्बन का चार्ज कितना है कार्बन डाइऑक्साइड में, तो आप कहेंगे +4। तो +2 to +4, चार्ज इज इंक्रीज्ड। तो ये रिडक्शन नहीं हो सकती, ये ऑक्सीडेशन है। ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट। देखते हैं जरा। यहाँ पर जिंक इज 0, क्योंकि मैंने अभी आपको कहा था कि सिंगल एलिमेंट 0 होगा, सिंगल एलिमेंट 0 होगा। और यहाँ पर जो जिंक है दैट इज +2। तो जिंक चेंज हो गया 0 to +2 में। जिंक चेंज हो गया 0 to +2 में। सो 0 to +2 मीन्स इंक्रीज इन चार्ज, और इंक्रीज इन चार्ज इस क्या होता है? ऑक्सीडेशन। तो इसलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो यहां से हमने इसको क्रॉस चेक भी कर लिया, ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। Okay, sir. दिस इज रिपीटेड क्वेश्चन। आगे चलते हैं जरा, इसको जरा देखिए। आई एम गिविंग यू 1 मिनट। अच्छा जी, अब मेरे साथ साथ रहिएगा, इसको जरा मैं भी सॉल्व कर लूं। Thiosulfate ions react with iodine in aqueous solution. In this reaction, the S2O32 minus ions dash electrons, यानी कि lose or gain, and are Gain. oxidized या reduced. तो I think the तो तो gain तो 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 electrons. ओके, लेट मी चेक दिस। S2O3 में, S2O3 में what is the charge of sulfur? So It's 3. 2s plus 3 into -2 is equal to -2. 2s plus minus minus 3 into 2 is 6 is equal to -2. 2s is equal to -2 plus 6, that is +4. We have to find out the charge of sulfur, so that would be equal to +4/2. So this is +2। ये सल्फर का चार्ज है। This is the charge of sulfur in S2O3। Then, what is the charge on sulfur in this S4O6? 4s 6o, that is -2 is equal to -2. 4s
Plus minus minus 6 into 2 is 12 is equal to minus 2. 4s is equal to minus 2 plus ka 12 and this is plus 10 and s is equal to 10 divided by 4 that is 5 by 2 which is 2.5, right? 5. Yes. अच्छा जी -12 और वहां जाके प्लस का 12 तो ये हो गया आपका अल्लाह भला करे 10 हो गया 10/4 हो गया यस राइट। अच्छा अब देखो जरा कि चार्ज आपका क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है चार्ज आपका इंक्रीज हो रहा है। तो जब इंक्रीज इन चार्ज होता है तो वो जो स्पीशी होती है वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाती है। सो एंड आर ऑक्सीडाइज सो ऑप्शन यानी कि यहाँ की बात कर रहा हूँ यहाँ पर आएगा ऑक्सीडाइज्ड ऑक्सीडाइज। ऑक्सीडाइज वाले यू हैव टू ऑप्शंस ए एंड सी और जब ऑक्सीडेशन होता है तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता है सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। So this is the reason option C is correct, right? Okay, sir. Yes. अच्छा जी ये भी रिपीटेड है। See this, see this. Which statement describes the conversion of magnesium atom to magnesium ions? I think A, because in reduction they gain electrons, and Magnesium atom is Mg and magnesium ion is Mg2 plus. 2 plus means K charge is increased and increase in charge is oxidation. oxidation and oxidation is loss of electron and oxidation is loss of electron. Yes, so B. And oxidation is loss of electron. Oxidation is loss of electron. So the change is oxidation and there has been a loss of electron. So B option is correct. See this Which question? 16. Okay. Can you go back to 16? I think B part. Okay, check करते हैं इसे जरा. Underlying substance is reduced. So this is 0, this is +2. ये तो increasing charge है, ये तो oxidation है, no. Okay, this is 0, this is -1. So yes, this is reduction. Yes, B option. आगे भी देख लेते हैं. This is 0 and this is +2. No, ये भी increase in charge है. This is 0, this is +2. तो ये भी गलत है. Okay, B option is correct. Uh, ओके ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। इसको जरा देखिएगा 19 पे मैंने वर्किंग की हुई है। 19 पे मैंने वर्किंग की हुई है देखिएगा जरा इसे।
कह रहा है which reaction is a redox reaction. तो Mg+2HCl gives MgCl2 plus H2 और ये सारा सारा. So A is correct क्योंकि A में your oxidation number is changing. बाकी B में हर चीज का ऑक्सीडेशन नंबर इज सेम, C में भी सेम, D में भी सेम. अच्छा, इसके लिए एक नॉर्मल स्टेट जनरल स्टेटमेंट है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस आर नॉट अ रीडॉक्स रिएक्शन. तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मींस व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद बेस. तो ये भी एसिड बेस रिएक्शन है, ये भी एसिड बेस रिएक्शन है, ये भी एसिड बेस रिएक्शन है. ये तीनों एसिड बेस रिएक्शंस है. तो ये तीनों रीडॉक्स नहीं हो सकते, इसलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट. अगर इसको इस बेस पे मैं सोचूं तो मुझे ये वर्किंग भी नहीं करनी चाहिए थी. ये तो बड़ा शॉर्ट, बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, ट्रिकी क्वेश्चन. कि कुछ चीजें अगर आपको पता भी हैं मेन मेन, तो आप इस तरह से भी अपने क्वेश्चंस को बड़ी आसानी से जो है ना वो कर सकते हो. तो ये बेस है, एसिड है, बेस एसिड बेस एसिड. तो दिस इज न्यूट्रलाइजेशन न्यूट्रलाइजेशन न्यूट्रलाइजेशन. और वो पूछ रहे कि इसमें से कौन सा रिएक्शन है जो रीडॉक्स है. वो पूछ रहे तो है, होगा इसका मतलब है. तो ऑप्शन ए इज करेक्ट. अदरवाइज आप सबको चेक कर लो, टेक्निकल सी बात है. Okay, sir. अच्छा जी. ओके सो सीरीज थोड़ी सी वर्किंग है इसके अंदर, थोड़ी सी. 18 or 27? 18 18 18 Okay. 18 18. I think A is correct. ओके. कह रहे हैं कि क्लोरीन इज रिड्यूस्ड. ओके, जीरो. दिस इज -1. हाँ भाई, चार्ज रिड्यूस हो रहा है. यस, दिस इज रिड्यूस्ड. ओके. बी भी देख लेते हैं. क्लोरीन इज द रिड्यूसिंग एजेंट. नो, जो रिड्यूस होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है. इनकरेक्ट. सी में कह रहे हैं आयरन टू आयंस आर रिड्यूस्ड. दिस इज +2, दिस इज +3, इंक्रीजिंग चार्ज. दिस इज ऑक्सीडेशन. इनकरेक्ट. आयरन टू आयंस आर द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. नहीं भाई नहीं, जो ऑक्सीडाइज होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है. इनकरेक्ट. ओके, गुड 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 गुड. सी दिस. Okay. I think it's A. ओके. Sir, अच्छा देखो, हमने क्या कहा था कि दो रिएक्शन जो है ना, दो, वो रिडॉक्स नहीं होते हैं. नंबर वन इज द डीकम्पोजिशन रिएक्शन एंड नंबर टू एसिड बेस रिएक्शन. एसिड बेस रिएक्शन. डीकम्पोजिशन में क्या होता है? व्हेन द कंपाउंड इज बीइंग ब्रोकन डाउन बाय
by the heat. तो ये आपका decomposition reaction है. The compound is broken down into two, calcium oxide and carbon dioxide. So this is incorrect. This is correct बल्कि ये redox है ही नहीं. ये redox है ही नहीं क्योंकि ये क्या है? Decomposition है. दूसरा, cross check कैसे करें? The oxidation number of calcium is plus 2. Oxidation number of calcium is plus 2, plus 2, plus 2. It's not changing. So this is not a redox reaction. बाकी जितने भी दिए हैं वो सारे redox हैं. मैंने यहाँ पर वर्किंग की है इसकी, देख लीजिएगा जरा. Okay, sir. Okay, in which reaction is nitric acid acting as an oxidizing agent? Nitric acid acting as an oxidizing agent. So हमने इसको ये देखा कि अभी हमने आपको एक बात कही, acid based reactions are not redox reactions. तो तो बेस एसिड बेस एसिड बेस एसिड, नॉट रिडॉक्स नॉट रिडॉक्स नॉट रिडॉक्स. तो ये एक ही बचा, ये रिडॉक्स है. और जो रिडॉक्स होगा ऑब्वियसली उसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होगा.